Hello guys, welcome to Exam. This is Amit and I welcome you all to the part 13 of our ongoing RBI Grade B most important question series. If you can change your mind, you can change your life. So it talks about your attitude. Attitude is आप आपका नजरिया, आप how you look at other things, how you look at your exam, your preparation, how you look at your life, how you look at your this particular phase of your life. So the more positive you are, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो once you start changing your thought process, definitely the things in your life start changing. So पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2024. इसका आंसर है यस, आंसर है शाहरुख खान. ठीक है, तो आप लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया कमेंट सेक्शन में. चलिए, विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट आवर सेशन नाउ. Under Pradhanmantri Awas Yojna Urban 2.0, what is the total financial assistance allocated by the Government of India to support the construction, purchase, rental of affordable housing for urban poor middle class families over the 5 years? अभी ये recent news है. अभी recently कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2.0, उसका एक्सटेंशन भी दिया गया है. तो इसका टोटल कॉस्ट आपको पूछा जा रहा है 5 years में. तो आवास योजना का दो पहलू है, एक है रूरल, एक है अर्बन. अर्बन में क्या है, देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड रेंटल हाउसेस एज वेल. तो द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग. इसमें रेंटल हाउसिंग भी आ जाता है. यस, द टोटल कॉस्ट विल बी 2.3 लाख करोड़ रुपीस. ठीक है, एज पर द recent decision made by the union cabinet, 2.3 lakh crore will be spent to help 1 crore urban poor and middle class families in the next 5 years. ठीक है, 1 करोड़ families को help किया जाएगा with the cost of 2.3 lakh crore. Here is the next question. Which of the following statements about the Clean Plant Program (CPP) under the Mission for Integrated Development Horticulture is correct? तो again there is an update. अभी जो recent कैबिनेट मीटिंग हुआ, इसमें 2-3 स्कीम्स में अपडेट हुए हैं. वन है कि हम देख लिया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, एक था ग्रामीण और एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो कि एक जो MIDH है इसके अंडर में आता है. तो इसमें आपको पूछा जा रहा है which of the following statement is not correct. ठीक है, सॉरी, is correct. So it focuses only on large scale farmers, or CPP will only support traditional varieties of plants, excludes women, pilot program limited to one region. नहीं, it provides virus free high quality planting material to farmers. ठीक है, तो virus free high quality planting material to farmers across the India. तो इससे फायदा क्या होगा, क्रॉप yields बढ़ेगा, इनकम अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फार्मर्स विल बी इंक्रीजिंग and supporting sustainability of the horticulture sector will also be there. So this is about a CPP. Here is the next question. The India Rankings 2024 released by the Ministry of Education, जिसे हम NIRF भी बोलते हैं, NIRF Rankings, introduce several new categories. बहुत सारे न्यू कैटेगरीज इस साल ऐड हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी NIRF का एग्जाम से पहले रिलीज होता है, तब आप देखोगे डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से 2-3 क्वेश्चंस आप बहुत फेज 1 और फेज 2 से एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट इज आस्किंग कि भाई इसमें न्यू कैटेगरीज, इनमें से विच न्यू कैटेगरी वाज एडेड. ठीक है, चलिए. यस, इट इज स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी. स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी एक न्यू कैटेगरी ऐड हुआ है. आई वुड सजेस्ट कि आप इस साल का जो 2024 NIRF रैंकिंग है उसको बहुत अच्छे से कवर करना. कौन कौन से कैटेगरीज ऐड हुए हैं, हर कैटेगरी में किसने टॉप किया है, ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है, ये सारे डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से देखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. The publication Women and Men in India 2023 highlights significant trends in gender equality. Like, as per this report, what is the expected sex ratio in India's population by the year 2036? ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023. यहाँ पे पूछा जा रहा है बाय 2036 एक्सपेक्टेड सेक्स रेशियो क्या होगा. Yes, the correct answer is 952 females per 1000 males. So this is expected by 2036. Okay. इस द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने कहा था कि भाई यूनियन कैबिनेट में 3 स्कीम्स में अपडेशंस हुए हैं, आवास योजना अर्बन, आवास योजना ग्रामीण और वो CPP वाला. अभी ग्रामीण के बारे में आ जाते हैं. तो ये क्या है, अभी एक्सटेंशन हो गया 24-25 से लेके 28-29. दिस इज वन इंफॉर्मेशन ऑल्सो. इंक्लूड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. व्हाट इज द सेंट्रल एंड स्टेट मैचिंग शेयर इन द टोटल आउटले. भाई टोटल आउटले में सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है, स्टेट का कितना है, एंड वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटेंशन अमाउंट ओनली. ठीक है, एक्सटेंशन अमाउंट पे हम बात कर रहे हैं. तो टोटल सेंट्रल का शेयर कितना होगा, स्टेट का शेयर कितना होगा. यस, यस,
205,856 crore will be the central share and 1,02,81 crores will be the state share. स्टेट्स सारे स्टेट्स मिलके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 करोड़ पक्का हाउसेस इन रूरल एरियाज का टारगेट है एंड दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू 28-29। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay. As for the India ranking 2024, which institute retained its top position in the overall category in the 6th consecutive year? तो एक तो भाई 6 साल से वही इंस्टीट्यूट टॉप में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका था ऑलरेडी। तो एनआईआरएफ रैंकिंग 23 के बारे में पूछा गया था। नाउ इट इज अबाउट 24। तो ओवरऑल कैटेगरी में इट इज आईआईटी मद्रास, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिटेन्स इट्स फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th consecutive year. Which institution topped the newly introduced open university category? Open university category में कौन सा इंस्टीट्यूट ने टॉप किया? तो द आंसर हियर इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। इग्नू न्यू दिल्ली हैज टॉप्ड द ओपन यूनिवर्सिटी कैटेगरी। ऑल्सो दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये जो कैटेगरी है ओपन यूनिवर्सिटी वाला कैटेगरी, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। और एक ऐसे ही स्किल्स यूनिवर्सिटी वाला भी इंट्रोड्यूस किया गया है नया, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए the next question. Ashwini Ponappa announced on July 30 that she played her last Olympics after suffering a third consecutive loss. She belonged to which sport? तो आपको पूछा जा रहा है कि अश्विनी पोनप्पा जो कि अपना लास्ट ओलंपिक्स अभी खेले, उन्होंने ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो she belong to which sport? Very important and very popular sports figure. Options are here: tennis, running, javelin throw, badminton and weightlifting. Yes, she belongs to badminton. So Ashwini Ponappa, a badminton star, announced on July 30 that she played her last Olympics after suffering a third consecutive loss in the women's doubles competition in the Paris Games. ठीक है, तो here is badminton D. Okay, here is the next question. आपको बताना है इसमें एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। ए बी सी डी, बोथ द स्टेटमेंट्स में एबीसीडी है। तो इसमें आपको बताना है कि इन विच पर्टिकुलर पार्ट द एरर्स आर देयर। ओके, with the dramatic rise of China and resurgence of Russia geopolitical competition, देखो resurgent तो नहीं होगा ना, resurgence of Russia geopolitical competition is increasing and Western coherence is becoming rare commodity. तो this is B, ठीक है। तो 1 में B तो यही है, तो आगे देख लेते हैं। The existing constitution in any case do not prevent the emergence of, okay, existing constitution does not prevent होगा, do not नहीं होगा, ठीक है। तो of course the answer would be B, ठीक है, does not prevent and resurgence. Here is a question for you. The Basketball Federation of India (BFI) has established the National Basketball Academy in partnership with Corvus American Academy. In which place? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Again I'm repeating, the Basketball Federation of India has established a National Basketball Academy. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन पार्टनरशिप विद कोर्वस अमेरिकन एकेडमी, कौन सी सिटी में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए नया मिला है एंड आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ पे है ये आप जज कर पाए हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम जब लाएंगे इस सीरीज में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, hello@iexambee.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। Prepare 50% faster with iExambee. This is Amit signing off.